جس میں کور کمانڈر پشاور اور چیف سیکرٹری، اس کے علاوہ وزیر صحت، انفارمیشن ایڈوائزر اور اس کے علاوہ دوسرے سرکاری جو ہمارے سیکرٹریز تھے وہ موجود تھے. کافی اس حوالے سے جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی پرائم منسٹر صاحب کے زیر صدارت جو کل میٹنگز ہوئی، اس حوالے سے جو فیصلے کیے گئے اس پہ ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد پھر ابھی 3 بجے صوبائی کابینہ کی خصوصی اجلاس بلایا گیا وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی صدارت میں. تو اس میں بھی جو فیصلے ہوئے، ایک تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ جتنے بھی فیصلے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے زیر صدارت جو کل فیصلے ہوئے، وہ ہم نے صبح ٹاسک فورس کے سامنے اس کو ڈسکس کیا اور ابھی کیبنٹ کے سامنے پیش کیے، اور کیبنٹ میں اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوئی اور ان فیصلوں کو اپروو کیا گیا ہے جو میں پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں ایک تو یہ کہ آج وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی پراپرٹیز ہے یا جو بھی ان کے کرایہ دار ہے، ان کے لیے 2 مہینے کی جو کرایہ ہے وہ ان کے جو ذاتی پراپرٹی ہے انہوں نے اس میں کرایہ نہ لینے کی انہوں نے فیصلہ کر لیا. اور اس طریقے سے انہوں نے آج کیبنٹ میں بھی اپنے تمام منسٹرز، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس اور سیکرٹری صاحبان کو بھی کہا کہ اس وقت چونکہ ملک اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک مشکل وقت ہے، اور اس مشکل کی گھڑی میں جتنے بھی ہم سب کو اس میں پہل کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی عوام کے ساتھ جو اس وقت ان کی جو مجبوریاں ہیں، جو ہمارے تاجر برادری کے ہیں، جو چھوٹے ہمارے دکاندار ہیں، اس وقت وہ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو سب کو یہ کہا گیا کہ اپنی اپنی طرف سے جو بھی ہے وہ جو ان سے ہو سکے وہ کریں. اس حوالے سے آج جو فیصلے ہوئے ہیں، میں پہلے ان فیصلوں کا ذکر کروں گا جن میں نرمی کی گئی ہے، پھر اس کے بعد جن میں توسیع کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. استثناء، اور میں اس سے پہلے یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت 2 جنگ لڑ رہے ہیں. ایک کرونا وائرس وبا کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری جنگ ہماری ہے غربت اور افلاس. پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب خود چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، خود گراؤنڈ پہ ہیں اور خود فیصلے کر رہے ہیں. اور ان فیصلوں کی جو بھی فیصلے ابھی تک ہم نے کیے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور ہمارا اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ اور جس کے اوپر مکمل طور پر ورلڈ فوٹنگ پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عوام کو کرونا وائرس سے تحفظ دے. وہاں پہ یہ جتنے بھی سٹیپس حکومت نے ابھی تک بھی ہم نے لیے ہیں، صرف اور صرف اس ایک مقصد کے لیے کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اس میں ہم اپنے عوام کو محفوظ رکھ سکے. تو یہ جتنے فیصلے ہم نے آج کیے ہیں، جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں جو فیصلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں ہوئے ہیں، اس میں آج جو ہم نے نرمی کر دی، اور اس حوالے سے سب سے پہلے جو استثناء کے تحت تمام رکشا، پرائیویٹ گاڑیاں اور مزدوروں کو لے جانے والی گاڑیوں پر پابندی ختم کر دی گئی. صوبائی کابینہ نے احساس پروگرام کے تحت نقد رقوم کی ادائیگی پر صوبائی حکومت کی جانب سے جو 15% ٹیکس تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، چونکہ فیڈرل حکومت آلریڈی اس میں چھوٹ دے چکی ہے جو ریٹیلر شاپس کے حوالے سے ہیں. اس طریقے سے سٹور سپلائی اور ڈیلرز ریت، اینٹس، فائبر گلاس
शॉप्स, फाइबर ग्लास के शॉप्स, बिल्डिंग सेफ्टी आलात, स्टील, लकड़ी, टाइल्स, वाटर सप्लाई मटेरियल, सीमेंट, पाइप, हार्डवेयर की दुकानें, ड्रिलिंग, ट्यूबवेल के सामान वाली दुकानें पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। सरमाया और स्टील के दुकानों पर भी पाबंदी जो है इसमें जो डिपो, टेम्बर डिपो, आरा मशीन और इस तरीके से इन पे भी पाबंदी नहीं होगी। इस पे जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई। पाइप, मोटर शॉप्स भी खुली रहेंगी। आम इलेक्ट्रिकल दुकानों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। माइन और मिनरल सेक्टर पर भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। और इस तरीके से सरिया और स्टील के दुकानों पर भी पाबंदी नहीं होगी। ये है वो जो हमने जिसमें नरमी की गई। दूसरा जो है जिसको हम ने तोसी दी है आज कैबिनेट ने, उसमें अमूमी जो लॉकडाउन है उसमें तोसी कर दी गई है। माशी और माशरती तकालीफ देखते हुए जो हमने जो इसमें है वो जो नरमी के है वो मैंने आपको बता दी है। इस तरीके से तालीमी इदारों में भी जो बंद रहेंगे उसमें भी तोसी कर दी गई है। तमाम सरकारी निजी तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। तमाम जो स्पोर्ट्स इवेंट्स पर भी पाबंदी होगी। बिनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट पर भी जो पाबंदी है उसमें भी तोसी कर दी गई है। अज़ला के अंदर ट्रांसपोर्ट कुछ ज़रूरी इस्तना के साथ ये भी आगे बंद रहेंगे। ये जो है ये कुछ फ़ैसले हैं जो आज हमने किए हैं। इसके बाकायदा अभी नोटिफिकेशन हो जाएंगे और वो मीडिया के ज़रिए आ जाएंगे। उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। मेन मकसद ये जो हमने फ़ैसले किए हैं इस वक्त जो हमने रिलीफ दिया है वो उसका भी हमारी ये कोशिश है कि उस रिलीफ की भी जो हमारी हुकूमत जो हमारे डिपार्टमेंट से वो SOP बनाएगी। उस SOP के तहत और इसमें हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे हालात अच्छे की तरफ जाएंगे उसी तरीके से हम दिनों के हिसाब से फ़ैसले अब नहीं कर रहे हैं, हम घंटों के हिसाब से फ़ैसले कर रहे हैं। हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है वज़ीर आला महमूद खान साहब की कि किसी तरीके से हो कि हमने वबा से भी अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है और साथ ये कि जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है और जो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको हम जो है ना वो उस पे वो कर लें इस तरीके से कि मैंने एक वजाहत करना चाहता हूँ। मुझे भी ये पता चला है कि कुछ टीवी चैनल पे चल रहे हैं वज़ीर आला महमूद खान साहब की जो ज़ाती प्रॉपर्टी है। अगेन मैं बता रहा हूँ ज़ाती प्रॉपर्टी जो है जो स्वात में है जिसमें उसके दुकानें हैं उनके ऊपर जो उन्होंने जो किराया उनको मिलता है उसमें उन्होंने ज़ाती तौर पर यह फ़ैसला किया कि 2 माह के लिए वो किराया नहीं लेंगे। और यही तलकीन उसने तमाम वज़रा को और दिगर सेक्रेटरीज़ और सब को ये उन्होंने कह दिया है कि इस पे जिस के पास है ये मुश्किल वक्त है, इसके लिए जो है वो अपने अवाम के साथ जो भी हमसे हो सकता है वो कर लें। तो ये वज़ीर आला साहब की मैं अगेन जो अपनी उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है ये उस हवाले से फ़ैसला है। जहाँ तक इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से हैं उसमें मैं एक बात ये बता दूं कि इस वक्त हमारे जो ये मीटिंग्स हुए हैं उसमें पेशावर जो कैपिटल है हमारा इसमें रेशो ज़्यादा आ रहा है। जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें इसमें बढ़ रहा है। तो इसमें एक तो ये है कि पेशावर कैपिटल है हमारा और फिर इस तरीके से मर्दान में पहले ऊपर गया था लेकिन मंगा के केस के बाद वो नीचे जा रहा है। बुनेर और अपर दीर में वहाँ से भी रिपोर्टें इस तरह आ रही है कि वहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो जो टेस्ट जो हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक तो पेशावर के हवाले से
मेरी अगेन एक रिक्वेस्ट होगी, आवाम से भी एक अपील है कि इस वक्त हमने गैर ज़रूरी जो वो है वो ख़त्म करने हैं, और इस वक्त सोशल डिस्टेंस जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है पेशावर के हवाले से और ये जितने भी हमने फ़ैसले किए हैं या जो हम फैसले कर रहे हैं उसकी वजह मेन जो है वो ये है कि हमने हर सूरत में कोरोना वायरस को शिकस्त देना है, और इसमें पेशावर और जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं उसमें एहतियात और सोशल डिस्टेंस के हवाले से जो है उसमें भी फौरी तौर पर हमें जो है जो हुकूमत ने SOPs तय किए हैं उसके ऊपर भी वो किया जाए, अमल दरामद किया जाए। इस तरीके से हम जो है इस पे वो करेंगे, इस पे काबू पाएंगे। दूसरा, काबीना ने एक ताजर बरादरी जो हमारी है उसके साथ बातचीत के लिए एक कमेटी सूबाई काबीना ने वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने बनाई है, जिसमें तैमूर जगड़ा साहब है, सुल्तान खान है जो हमारे वज़ीर कानून है, शौकत यूसुफज़ई, अब्दुल करीम ख़ान और शाह मोहम्मद ख़ान, और इंफॉर्मेशन मैं भी हूँ उस कमेटी में। ये हम जो हमारे ताजिर बरादरी है उनके साथ हम बैठेंगे, उनके साथ हम इस हवाले से बातचीत करेंगे, SOPs के हवाले से भी बातचीत करेंगे, और आगे ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं, जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं इस वक्त, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हमारी माएँ बहनें हों, चाहे वो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे हमारे उलमाए कराम हो, चाहे हमारे सियासी जमातों के अकाबिरीन, सबसे एक दरख्वास्त है कि इस वक्त हमें जो कोरोना वायरस के हवाले से जो ग्लोबली ये प्रूफ हो चुका है वो सोशल डिस्टेंस, उसके ऊपर हम सब ने मिलकर अमल करना है, और एहतियाती तदाबीर जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इस कोरोना वायरस की वबा से अपने अवाम को बचाने के लिए, उसके ऊपर हमने अमल करने। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में और उनके विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की इंस्ट्रक्शन जो कि वो खुद ग्राउंड पे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमने सब ने मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देना है। और मेरी तमाम पाकिस्तान के जितने भी सियासी जमातें हैं, मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ, एक ही अपील करता हूँ कि ये जो सियासी इख्तलाफ है इसको क्वारंटाइन कर ले। पहले हम इस वबा को शिकस्त दे, उसके बाद सियासत भी होगी, उसके बाद सारी चीजें होगी। लेकिन खुदारा इस वक्त हम सबको जो कि कल मैं खुद को जो प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग की है, मैं पाकिस्तान की तारीख में मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, उनकी लीडरशिप को। ये होता है लीडर कि कल उसमें या उससे पहले जो मीटिंग हुई है उसमें सिंध हुकूमत, सिंध के वजीर आला, बलूचिस्तान के वजीर आला, पंजाब के वजीर आला, और जो हमारे इस तरीके से वजीर आला महमूद खान साहब खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और वजीर आजम आजाद कश्मीर, सब मिलकर कल जो कंसेंसस हुई है जिसमें फैसले किए गए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में, इसका मिसाल कहीं नहीं मिलता। इस जज्बे के तहत हमने कोरोना वायरस को शिकस्त देना है। इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में अपने जो हीरोज है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, जो हमारे हीरोज है, जिसको हमारी नस्लें याद रखेंगी, जो इस वक्त जो जंग लड़ रहे हैं फ्रंट फुट पे, उनके, और फिर हमारे इस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा रेस्क्यू के एहलकार है, हमारी पुलिस है, और इसके अलावा जितने डिपार्टमेंट है, मीडिया के मेरे जो भाई हैं, कैमरामैन है, बीट रिपोर्टर्स है, फोटोग्राफर्स है, तमाम मकातिब फिक्र, और फिर जो कोऑर्डिनेशन है हमारी सूबे में, हमारे पाक आर्मी की जो कोऑर्डिनेशन है, जिसमें इस वक्त पाक आर्मी के जवान हर मौके पे सूबाई हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के पैसे जो तकसीम हो रहे उसमें,
چاہے وہ فرنٹ فٹ پہ کرونا وائرس کی جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. تو اس وقت آخر میں تمام اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے اور اپنی صوبائی حکومت کی طرف سے، صوبائی کابینہ طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کے غیور عوام کو کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں، چاہے وہ جس مکاتب فکر سے ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ جس بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو، جس طریقے سے وہ اس وقت اپنی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی عوام کے لیے وہ سٹیپس اٹھانے ہیں انشاءاللہ تعالی کی اس میں ان کی تحفظ عوام کی اور ان کی جو ریلیف کے لیے جو سٹیپس ہم نے ابھی اٹھائے، جب ہم انشاءاللہ تعالی اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے اس کی جو شکست انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے، انشاءاللہ تعالی اس کا ریلیف اور اس کے لیے ہمارے خیبر پختونخوا کے جتنے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام پہ قربان ہیں. تھینک یو ویری مچ.